coronavirus, I am Oceana. Certainly, let the people all praise God and honor to you. In Jesus' name, I pray. Amen. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about your man of Gideon, you may talk about your man of Saul, but there's none like good old Joshua cried, for the battle of Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Right up to the walls of Jericho, they marched with spear in hand. Go blow their lemons, Joshua cried, 'cause the battle is in my hand. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Then the ram's horns began to blow, and the trumpets began to sound. Joshua told the children to shout that morning, and the walls came tumbling down. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Thank you. Start. I'm gonna clap, clap, clap. I'm gonna snap, snap, snap. I'm gonna clap, I'm gonna snap and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sit by Jesus Christ. I'm gonna clap, I'm gonna snap and praise the Lord. And praise the Lord. I'm gonna sing, sing, sing. I'm gonna shout, shout, shout. I'm gonna sing, I'm gonna shout and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sit by Jesus Christ. I'm gonna clap, I'm gonna snap, I'm gonna sing, I'm gonna shout and praise the Lord. And praise the Lord. I'm gonna zoom, zoom, zoom into the room, room, room. I'm gonna zoom into the room and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sit by Jesus Christ. I'm gonna clap, I'm gonna snap, I'm gonna sing, I'm gonna shout, I'm gonna zoom into the room and praise the Lord. And praise the Lord. I'm gonna fly, fly, fly into the sky, sky, sky. I'm gonna fly into the sky and praise the Lord. When the gates are open wide, I shall sit by Jesus Christ. I'm gonna clap, I'm gonna snap, I'm gonna sing, I'm gonna shout, I'm gonna zoom into the room, I'm gonna fly into the sky and praise the Lord. And praise the Lord. And praise the Lord. My name is Aradhana. Start. యెహోవా నా కాపరి, నాకు ఏమి కలగదు. పచ్చికల చోట్ల ఆయన నన్ను పడును చేస్తున్నాడు. శాంతికరమైన జలమయతకు నన్ను నడిపించుతున్నాడు. నా ప్రాణం నాకు ఆయన చెడ్డనిచ్చుతున్నాడు. తన నామం బట్టి నీతి మార్గంలో నన్ను నడిపించుతున్నాడు. I will pray you. For I am fully and wonderfully made. Marvelous are your words, my soul knows very well. Psalms chapter 139, verse 14. Thank you. God's story, Nehemiah. So part of God's story is about a guy named Nehemiah, and it goes like this. Remember God's family?
They were called the Israelites because they lived in, you guessed it, Israel. But some of them lived far away from their home, and one of those guys was Nehemiah. He lived in Persia and worked for the king. One day, his brother told him that a city in Israel called Jerusalem was suffering, and many people there weren't following God anymore, and their city wasn't in very good shape. Nehemiah cried, "God, you are wonderful, but your family's home is in trouble. Please help us. When I serve the king his wine today, make him pleased with me and have him do what I ask." Later, when Nehemiah served the king's wine, the king noticed that Nehemiah looked sad. So the king asked why. Nehemiah told him about Jerusalem and asked if he could go back to rebuild the wall. The king could have killed Nehemiah for asking to leave, but instead, he said go. He even helped. That's because God heard Nehemiah's prayer and answered it. Anyway, Nehemiah went to work rebuilding the wall, but little did he know he was going to need to ask for a lot more help from God. See, God and his family have always had enemies, and these enemies wanted to stop Nehemiah and the people helping him. First, they made fun of them. So Nehemiah prayed again. He said, "God, some people hate us. Please get rid of them," and went back to work. Now, God does hear and answer every prayer, but sometimes not in the way we expect or even in the way we want. And at first, it seemed like God wasn't answering this one at all, because when the enemy saw that Nehemiah was still building, they planned an attack. But Nehemiah trusted that God heard his prayer even if it didn't feel like it. And God did! He caused some people to overhear the enemy's plan and warn Nehemiah. Even though the enemies were still after him, Nehemiah planned a defense and told the others, "Don't be afraid of your enemies. Remember the Lord. He is great and powerful." And on they worked, building, building, building. The closer the wall got to being finished, the more Nehemiah's enemies realized they couldn't stop him by making fun of him or by attacking him. Time for something else. They tried everything. They sent messages to get Nehemiah to leave the wall and meet them. He wouldn't. They hoped Nehemiah's hands would get weak, but Nehemiah had asked God to make his hands stronger. They even paid a priest to ask Nehemiah to leave the wall and come to the temple. But Nehemiah trusted God more than anyone else, even the priest, and he refused to stop doing the job God had given him. Kids, are you willing to listen to God and obey him, no matter what? Well, finally, the wall was done. God's family got to go home again, and Nehemiah's enemies found that nothing stops God's plans. The Israelites celebrated and praised God, and as they praised, they realized how much their sins had hurt God, and they felt terrible. They told God they were sorry and thanked him for helping them. Then they made a brand new promise to follow him, and Jerusalem was once again a safe place where people honored God. And that's the story of Nehemiah. But just so you know, You have chosen to save humanity. What is your will for me? Please tell me. After 40 days of starvation, Jesus understood what it felt while starving. For many days, Satan attacked the mind of Jesus with doubts and fears. Satan realized that Jesus was very weak, and he decided to tempt him even more. You are hungry, aren't you? Now you know what it means to be hungry. Aren't you the Son of God sent to save humanity? You can turn these stones into bread. Do it and save yourself from hunger. All the stones could be turned into bread at your word. Do it. Utter the word. Turn these stones into bread. You are the Son of God. You can turn these stones into bread. In the face of severe temptation, Jesus thought about the scriptures. What happened to the people who followed Moses? Bread and meat. They ate to their fill, but all of them perished in the desert. No, I won't. Listen, Satan. Man lives not by bread alone, but by every word that comes out of God's mouth.
Satan grew angry when Jesus refused, and he decided to tempt him even more. You were right. What people need is the word of God. But how are you going to make them listen? You must give them signs. The people believe only when they see miracles. Don't you know that people are waiting for a Redeemer? Do something spectacular, a great miracle that will make people believe that it is God who sent you to redeem this world. The next moment, Jesus was standing on top of a very tall building. Many people were assembled below. Jump down. The angels of the Lord will protect you and carry you safely. When the people see that you are not hurt, they will accept you as the Son of God. What had happened to Moses? People saw the miracles he did, but even then they did not believe him. No miracle can ever convince those whose hearts are closed. It is written in the scriptures that you must not put your Lord to test. Huh? The Satan decided to tempt Jesus for one last time. What you said is true. People rejected Moses, who performed miracles, but not David. People still look up to David as their savior. Aren't they still waiting for the Son of David to liberate them? Don't you see the misery of your people? Aren't they being crushed by the Roman Empire? Be brave like David. Save the people from misery. People will respect only the one who has power. Look at the Roman Empire. I shall give you their empire to you. Not only that, but this whole world shall be yours. Take the power. Put an end to oppression. Establish justice. Just bow down before me, and I shall make you the Lord of the universe. It's the same voice. The same voice that Adam and Eve heard in the garden. No, I will not let him. It is written that you must worship the Lord your God alone and serve no one else. Go away, Satan. You have failed. Jesus defeated. हाय बच्चों, सबको जय मसीह की। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? आज हम सक्सेसफुली फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट कंप्लीट करने वाले हैं और आज हमारा लास्ट लेसन है उसमें। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप वो सब लेसन्स अपने मन में रखे हो और उसके अनुसार चलने के लिए तैयार हो। तो ठीक है बच्चों, आज हमारा लेसन, आखिरी लेसन फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट में क्या है? सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल में आज हमने 2 वीडियो मैंने रखा है 2 व्यक्तियों के बारे में, तो उसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। ये वो कैसे सेल्फ कंट्रोल रखे थे वो मैं बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो बच्चों, नेहम्या नामक एक परमेश्वर के दास हैं, वो इस्राएल जाति में से थे। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, ये यरूशलेम में ये इस्राएल जाति पूरे रहते थे, मगर वो सब जब पाप करके परमेश्वर को क्रोध दिलाए थे, परमेश्वर ने क्या किया, उनको सजा देने के लिए इन सब को, मतलब इस्राएल जाति पूरे लोगों को क्या कर दिया, मतलब दूसरे लोगों के अंडर स्लेव्स जैसे गुलामी बनाकर बेच दिया है। वो कौन है? नेबुकदनेस्सर, मतलब बेबीलोनियन किंग है वो। तो ठीक है, वो जब लेके जा रहे थे, ये यरूशलेम में ना बहुत बड़ा मंदिर था। आपको पता है, सोलोमन, द किंग सोलोमन हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए ग्रेट टेम्पल, है ना, वो गोल्डन टेम्पल भी माने जाता था। तो वो टेम्पल को पूरा डिस्ट्रक्ट कर दिया था और यरूशलेम को कवर करते हुए पूरा एक बड़ा दीवार रहता था, मतलब कोई शत्रु आकर उनको नहीं मार पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बड़ा दीवार उसके बाजू, उसके पूरे वो यरूशलेम पूरा कवर करते हुए एक बड़ा दीवार बांधा था उन्होंने। तो ये जब नेबुकदनेस्सर इज़राइल लोगों को लेके जाता था गुलाम बना के, तब वो क्या किया, वो यरूशलेम टेम्पल को पूरा डिस्ट्रक्ट कर दिया और वो जो वॉल्स है ना, दीवार मैंने बोला है ना, यरूशलेम के पूरे यरूशलेम को कवर करते हुए जो दीवार है ना, उन सबको भी तोड़ दिए थे। तब क्या होता है,
वो सब लोग गुलामी बन के चले जाते हैं। ये सब अभी बेबीलोनियन किंग के पास थे। एक बार वो मर जाता है। उसके बाद बहुत साल के बाद एक बार नेहम्याह को ना उनके फ्रेंड्स आते हैं वहाँ से, यरूशलेम से, और वो बोलते हैं कि ऑलरेडी इससे पहले ना जो डिस्ट्रक्ट कर दिया था वो टेम्पल को, फिर से उन्होंने बांध लिया था दूसरे लोगों ने जाके। तो ये जब उनके फ्रेंड्स आते हैं वो पूछता है कैसा है हमारा यरूशलेम करके, तब ये बोलता है वो तो पूरे वॉल्स पूरे पड़े हुए हैं, मतलब दीवार पूरे तोड़ गए हैं ऐसे करके। तो तब कितना नेहम्याह को कितना बुरा लगता है, क्योंकि मैं बताऊँ बच्चों, ये यरूशलेम ना परमेश्वर के बच्चों का है ना, मतलब इज़राइल जाति पूरे वहाँ रहते थे, तो उनका ये सिटी है, तो परमेश्वर को कितना दुख होता रहेगा ना। तो वही दुख नेहम्याह को भी आया था कि परमेश्वर कैसे भी करो मैं ये पूरे दीवार को फिर से मैं बनाऊंगा जाके करके। तब वो राजा के पास, ये नेहम्याह कौन है, राजा के पास ना काम करता था। तो ये राजा से पूछकर वहाँ वो दीवार कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फिर से वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए चले जाता है। तो बच्चों मैं बताऊँ, वहाँ जाने के बाद वो वॉल कंस्ट्रक्ट करने में वो काम करते रह था, वो सब भी उनके साथ काम कर रहे थे, मगर उनके एनिमीज़ जो रहते हैं ना, जो परमेश्वर के काम को रोकना चाहते हैं, वैसे वाले वो एनिमीज़ रहते हैं ना परमेश्वर के काम के, तो वो आके कैसे भी करो वो काम से इनको छुड़ाना है, वो काम वहाँ रोक देना है करके कितना प्रयत्न करते हो, उसको कितना चिढ़ाते हैं। हाँ, ये बड़ा दीवार बनाने वाला आया है, ऐसा ये वो दीवार नहीं बनना चाहते थे वो। तो वो फिर भी ना वो वहाँ नेहम्याह क्या करता है पता है, इतना चिढ़ा रहे थे। अगर हम उनके प्लेस में रहते थे ना, हम क्या करते थे बताओ, एक बार वो सारा सामान ऐसे नीचे गिराकर, चल मैंने कंस्ट्रक्ट करने वाली, मैं क्यों करूँ, परमेश्वर के वजह से मुझे सबसे ये सब सुनना पड़ रहा है करके हम तो कितना गुस्सा हो जाते थे, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता था हमें। मगर नेहम्याह ने क्या किया बच्चों में बताओ, नेहम्याह तो ना वो सब सुन रहा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर अगर मैं अभी इनके ऊपर गुस्सा निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये काम बंद हो जाएगा, परमेश्वर का काम बंद हो जाएगा। तो मुझे अभी ये गुस्सा निकालने का टाइम नहीं है, मुझे क्या करना है, सेल्फ कंट्रोल करना। उसके अंदर वही बोल रहा है कि कंट्रोल नेहम्याह कंट्रोल, उसका मन बोल रहा है नेहम्याह कंट्रोल कर लो, ये सब ना शैतान का काम है तुम्हें रोकने के लिए। तब वो इमीडिएटली क्या करता है, प्रार्थना करता है और परमेश्वर से मदद मांगता है, परमेश्वर मुझे कंट्रोल दो इसके ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर मुझे क्या चाहिए अभी, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, मुझे सेल्फ कंट्रोल दे दो ना परमेश्वर। ऐसे करके प्रार्थना किया और फिर से काम करना शुरू कर दिया। तो बाद में वो वॉल्स पूरे अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर देता है। तो बच्चों अभी देखो, मैं ये क्यों बोली आपको, अगर नेहम्याह वहाँ वो एनिमीज़ के बात सुन के अगर गुस्सा लगा के उन सबको डांट दिया, ये ऐसे करते हो वैसे करते, तो क्या होता था, परमेश्वर का काम बंद हो जाता था। अभी देखो बच्चों, कभी भी हम ना परमेश्वर के काम में आगे जा रहे हैं, तब क्या होता है बताओ, शैतान हमेशा हमको किसी न किसी रीति से दुश्मनों को भेजता है, हमारा काम छुड़ाने के लिए, हमें काम नहीं करने देता है। मगर फिर भी हमें सेल्फ कंट्रोल करना है। अगर हम सेल्फ कंट्रोल करना है तो कैसे कर सकते हैं, नेहम्याह ने क्या किया सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, प्रार्थना किया है। प्रेयर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर सेल्फ कंट्रोल। इमीडिएटली कभी तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, कोई तुमको चिढ़ा रहे है, कोई तुमको कुछ बोल रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ तो उनको बोलने का मन आ रहा है, मगर ऐसे कुछ नहीं बोलो। इमीडिएटली क्या करना है, हमको घुटने पर आ जाना है और प्रेयर करना है, परमेश्वर मुझे सेल्फ कंट्रोल दे दो प्लीज़, मैं कुछ भी बात नहीं करूँगी अभी, मुझे अभी कुछ भी बात नहीं करने का है। ऐसे करके घुटने पर आकर प्रेयर कर दो, तब क्या हो जाएगा, वहाँ तक वो सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा हमें, और परमेश्वर का काम चलेगा और हमें गुस्सा भी नहीं आएगा, अच्छे से हम हेल्दी रहेंगे। तो नेहम्याह के जीवन से हमने क्या सीखा है बच्चों, अगर हमें सेल्फ कंट्रोल चाहिए तो हमें क्या करना है,
प्रार्थना करना है और किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। हम तो बहुत बार ऐसे टेम्प्ट हो जाते हैं ना कुछ बोलने के लिए। मैं भी मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसे टेम्प्ट हो गई थी, मगर परमेश्वर मुझे भी सिखा रहे हैं कि मुझे भी परमेश्वर यही सिखा रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल। कभी भी जब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, इमीडिएटली दूसरे तरफ से एक आत्मा बोलती, परमेश्वर की पवित्र आत्मा बोलती है, कंट्रोल कंट्रोल, तुम्हें गुस्सा नहीं करने का है, तुम्हें कुछ बोलने का नहीं है, ऐसे करें। तब अगर हम वो पवित्र आत्मा का सुनेंगे तो हम सब बच जाएंगे। और जो सेल्फ कंट्रोल रखेंगे ना, परमेश्वर उनको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे वीडियो में हमने किसको देखा है? यीशु मसीह को। बच्चों मैं एक बात बताऊं, फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट में हमें सब में कॉमन कौन दिखाई दे रहे हैं? हम तो बहुत लोगों के बारे में हमने ये फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट में देखा है। लव के बारे में थोड़े एग्जाम्पल्स, जॉय के बारे में, पीस के बारे में ऐसे देखा है ना, मगर सब 9 में हमें कॉमन एग्जाम्पल कौन दिख रहे हैं? यीशु मसीह। देखो बच्चों, मतलब यीशु मसीह ना इस दुनिया में जब जी रहे थे, पूरे 9 फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट को उन्होंने फॉलो किया है। इसका मतलब क्या है? अगर यीशु मसीह फॉलो किया है तो हम सबको कैसे बनना है? उनके स्वरूप में हम सबको बदलना है। तो हमको भी क्या करना है? ये सब फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। हम सेकंड किसको देखे? यीशु मसीह को देखे। और यीशु मसीह के जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ उनको सेल्फ कंट्रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यीशु मसीह वो टाइम पे बहुत निष्ठ से थे, मतलब कहीं भी उन्होंने सेल्फ कंट्रोल को नहीं छोड़ा है। तो बच्चों वो कब आया? मतलब वो यीशु मसीह एक बार ना 40 डेज फास्टिंग थे, मतलब कुछ खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए। 40 डेज हो जाने के बाद यीशु मसीह जब बाहर आ रहे थे अरण्य से, तब क्या किया? शैतान देखा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी टू टेम्प्ट जीसस। तो वो क्या किया? जाके उनको टेम्प्ट करने लगा कि यहाँ 3 बार शैतान उनको टेम्प्ट करने के लिए बहुत देखता है। एक बार बोलता है पत्थर को रोटी बनाओ, दूसरे बार बोलते हैं ये पहाड़ों से कूदो, स्वर्गदूत आके तुमको उठाएंगे करके, तीसरे बार बोलता है ये तुम मुझे दंडवंत करो, मैं ये पूरा जगत को आपके अधीन कर दूंगा करके। देखो बच्चों, ये 3 टाइम भी यीशु मसीह ने क्या किया बताओ मैं आपको? यीशु मसीह ने ना वचन को सुनाया है। परमेश्वर ने जो वचन बाइबल में लिखवाया है वो वचन को सुना के ऐसे नहीं करने का है करके वो वहाँ सेल्फ कंट्रोल किए थे। देखो बच्चों, अभी बहुत दिन से, मतलब 40 डेज कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया, मतलब कितना भूख लगता होगा यीशु मसीह को। एक बार सोचो, अगर एक दिन पूरा हम कुछ नहीं खाए, नाइट तक हमको कितना भूख लगता है, और कुछ भी मिले हम क्या करते हैं? अर्जेंट हमें खाना है और तुम्हारे पास शक्ति है कि वो पत्थरों को रोटी जैसे बदलने की शक्ति है, तो तुम रुकोगे क्या? बताओ। यीशु मसीह के पास सब शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है, फिर भी शैतान उसको टेम्प्ट कर रहा है ना, तब वो बिल्कुल नहीं झुका, क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल बोल रहे हैं, नहीं परमेश्वर के बात ही मुझे सुनना है। अगर मैं शैतान की बात अगर मैं सुना तो क्या हो जाएगा? ये पूरा मतलब परमेश्वर मुझसे दुखी हो जाएंगे करके सोच के शैतान तुम यहाँ से चले जाओ करके बोलता है। देखो बच्चों, यीशु मसीह ने क्या किया? टेम्पटेशन के टाइम में सेल्फ कंट्रोल करने के लिए वचन सुनाया है। अभी इसका मतलब क्या है? नेहमिया ने प्रार्थना किया है और यीशु मसीह ने वचन सुनाया है। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है और वचन पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम हर दिन बाइबल पढ़ रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं, तो कभी शैतान आके हमें टेम्प्ट कर रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? वचन पढ़ेंगे तो हमारे मन में अगर वचन है तो हम बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो हम कहाँ से बोलेंगे, है ना? तो वचन को उसको बोल सकते हैं कि ऐसे नहीं करने का है, ये गलत काम कर दो अगर बोल रहा है शैतान आके, तब हम क्या बोल सकते हैं? अगर वचन हमारे मन में है तो नहीं, शैतान ये मुझे करने का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इससे खुश नहीं होंगे, तुम यहाँ से चले जाओ करके। सो सेल्फ कंट्रोल। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों से हमने क्या सीखा है? हमारे जीवन में प्रेयर एंड वर्ड ऑफ गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। सो हमें ना तो हमें इनको कभी भी छोड़ना नहीं, हमेशा हमको प्रार्थना करना है
और हमेशा हमको वचन पढ़ना है और उसके अनुसार चलना है। देखो बच्चों, आज हमने इन दोनों व्यक्तियों से 2 बातें सीखे हैं कि सेल्फ कंट्रोल कैसे आता है, प्रेयर करने से आता है, और वचन पढ़ के उसको यूज़ करने से, वो वचन को उपयोग करने से आता है। ठीक है बच्चों, आज हम ना बहुत अच्छे से लेसन सीखे हैं ना, सेल्फ कंट्रोल। कभी भी आपको गुस्सा आ रहा है तो कोई तुमको चिढ़ा रहे, कुछ भी बोल रहे, उल्टा मत बोलो, इमीडिएटली प्रेयर करो, परमेश्वर मुझे सेल्फ कंट्रोल दे दो करके। और कुछ बहुत मतलब कुछ ऐसा लगा कि अभी तो मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ भी, ऐसे लगा तो तब इमीडिएटली तुमको क्या करना है, प्रेयर करना है और वचन पढ़ना है। तब क्या हो जाएगा, हमको सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। परमेश्वर से अगर हम मदद मांगने से ही हमें क्या आएगा, सेल्फ कंट्रोल। नहीं तो हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाय बच्चों, आज हम सेल्फ कंट्रोल ये नया लेसन के बारे में सुनने वाले हैं। तो हम स्टार्ट में प्रेयर करेंगे। आइए आंखें बंद कीजिए, हम प्रेयर करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आज का दिन दिया इसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। आज का दिन न देखते हुए कितने लोग मर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर हमें सजीवों में चुना परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद कहते हैं। सेल्फ कंट्रोल के बारे में हमें जब सिखाती हो तब तुम मुझे चलाओ, और ऑनलाइन बैठे हुए सारे बच्चों को तुम अच्छी बुद्धि और ज्ञान दे के चलाओ। यीशु के नाम में प्रार्थना विनंती करते हैं पिता, आमीन। सेल्फ कंट्रोल का मतलब हम पहले सुनते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल देती हूँ। घोड़ा रहता है, हॉर्स रहता है। घोड़े को जब हम राइडिंग करते हैं तब घोड़ा चलाने वाला अपने हाथों में लगाम पकड़े रहता है। वो लगाम घोड़े के मुंह में होता है। उससे क्या होता है, घोड़े पे लगाम डाले जाता है ताकि वो इधर उधर ना जाते हुए सिर्फ घोड़ा चलाने वाला जिधर उसे ले जाना चाहता है उधर ही जाने के लिए वो लगाम पकड़े हुए रहता है। यहाँ हमें ये समझ में आता है कि घोड़े को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो रस्सी, लगाम। उसी तरह हमें भी खुद को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम भी गलत मार्ग पर ना जा सके। कौन सी बातें हमें सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, कौन सी बातों में हमें रखना चाहिए, जो बातें गलत है उन्हीं बातों से हमें पता है। 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा क्या है, वो 10 आज्ञा हमें पता है। सेल्फ कंट्रोल के बारे में वो 10 आज्ञा ही हमें बताता है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ यानी हम खुद, हम यानी हमारे बॉडी में पार्ट्स है। कौन से पार्ट्स है, आँख, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये पार्ट्स है। उन पार्ट्स को हमें कंट्रोल करना चाहिए गलत मार्ग में ना जाने के लिए। ये बॉडी पार्ट से हमें गलत काम होने से कंट्रोल करना चाहिए। पहला हम देखते हैं आँखों से क्या देखते हैं, टीवी सीरियल्स, मूवी देखते हैं। उससे हमें क्या लगता है, वैसे ही फाइटिंग करना चाहिए, उस हीरो जैसे ही बनना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। तो हम क्या सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। हमें आँखों से क्या करना चाहिए, उन चीज़ों से अनदेखा करके हमें वचन पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। दाऊद ने भी दिन रात वचन पढ़ा, उसके अनुसार चला, इसलिए उसने एक भविष्य में वो राजा बन गया। उसी तरह हमें भी आँखों से हमें बुरी चीज़ों से कंट्रोल करके अच्छी चीज़ें पर यानी वचन पर ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट, मुंह क्या करता है, मुंह से हम बातें करते हैं। मुंह से हम क्या करते हैं, कुछ भी गलत बात बोल देते हैं, उनका मन दुखाते हैं और झूठ भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, वह हमें मुंह को कंट्रोल करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को, मम्मी पापा को या बड़ों को, किसी को भी उल्टा नहीं बोलना चाहिए। यही हमें 10 आज्ञा में, 10 कमांडमेंट्स में बताता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, कान। तो कान से क्या करते हैं, हम सुनते हैं, अच्छे और बुरे दोनों भी बातें सुनते हैं। देखो, हम कभी कभी हमारे स्कूल फ्रेंड्स में क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स के बारे में दूसरा आके क्या बताता है, देख उसने तुझे क्या भी एग्जाम में नहीं बताया, तूने कुछ भी नहीं लिखा है और इसलिए तू फेल हो गया। हम क्या करते हैं, दूसरा फ्रेंड्स के बारे में सुन के हमारे फ्रेंड को हम डांटते हैं, चिल्लाते हैं, उससे बातें करना छोड़ देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, बुरे सुनने से हमें उस पर यकीन करके हम क्या करते हैं, उसको बुरा बर्ताव करते हैं।
इसलिए हम जो भी सुनते हैं वो सच है क्या नहीं वो समझना चाहिए। और तुम्हें पता है ना, वचन ही सत्य है, इसलिए वचन पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें कानों से क्या करना चाहिए? वचन सुनना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है? हाथों से क्या करते हैं हम? कुछ भी काम करते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं स्कूल में? कभी कभी किसी का पेंसिल, रबर चुराते हैं और टीचर पूछने के बाद क्या करते हैं? मैंने नहीं चुराया ऐसा कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वहीं पे हमें चोरी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है? दूसरों की मदद करना चाहिए। हमारे हाथों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पैर से क्या करते हैं? हम चलते हैं। हमारे पैर है, उन पैरों से चलना है, अच्छे रास्ते पर चलना है। अच्छा रास्ता यानी अच्छा रोड, मिट्टी पे नहीं चलना, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ क्या है? हम जो भी आप सुने हैं उसके अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। जिधर भी प्रार्थना है उधर हमें जाना है। जिधर चर्च में प्रेयर चल रहा है उधर हमें जाना ही चाहिए। अभी पता हुआ ना आपको, बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते करते हुए हमें गॉड बॉय बनना है। गुड बॉय से लेकर गॉड बॉय बनना है, गुड गर्ल से लेकर गॉड गर्ल बनना है। हमारा रोल मॉडल, हमारा सुपर हीरो कौन है? जीसस ने भी बचपन से क्या किया पता है क्या? अपने पैरों से चर्च को गया और अपने हाथों से बाइबल पकड़ा, अपने आँखों से बाइबल में से वचन पढ़ा और अपने मुंह से सिर्फ वचन ही बताया। उसी तरह हमें भी जीसस की तरह बनना चाहिए। हमारे बॉडी पार्ट्स में सब गलत चीज़ें हटाकर कंट्रोल करके हमें परमेश्वर के अनुसार हमारा जीवन बिताना चाहिए। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स परमेश्वर के कामों में यूज़ होना चाहिए। जीसस ने कैसा सारे बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके स्वर्ग में गया ना, कंट्रोल करते करते, उसी तरह हमें भी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हुए गलत चीज़ों से ठुकराते हुए हमें स्वर्ग जाना चाहिए। तो बच्चों समझ में आया ना आज का लेसन? तो आज अभी मेमोरी वर्स देखते हैं। तो मेमोरी वर्स है निर्गमन 20वां अध्याय 13, 14, 15। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना। तो बच्चों ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कीजिए। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हमारे प्यारे पिता, अभी मैंने जो कुछ भी सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया वह सब सारे बच्चे ग्रहण करके उसके अनुसार चलने के लिए उन्हें सहायता और मदद कीजिए। ये छोटी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। बहुत अच्छा लेसन सुना है ना। तो आज हम आखिरी प्रार्थना करके इस सेशन को क्लोज कर देंगे। सब लोग आंखें बंद करो। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का जो लेसन है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सेल्फ कंट्रोल बोल रहे हो प्रभु जी, तो हम उसके अनुसार चलने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। और प्रभु जी, हम सेल्फ कंट्रोल से जीने के लिए, हम कभी भी हमें गुस्सा आए तब हम प्रार्थना करने के लिए और उल्टा सीधा नहीं बोलने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग रही हूँ, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की। फिर हम कल मिलेंगे।